I find an issue with this word brain drain. Degree is not really necessary for you to become successful. The reality is the exact opposite. पाकिस्तान एक नहीं है, मुख्तलिफ पाकिस्तान है. आपने कोई ट्रेंड देखा है कि people were maybe not willing to accept it पहले, but now आहिस्ता आहिस्ता they trust it more? Different types of people always exist. अगर आप कॉन्वर्सेशन करते हैं तो आपके पास कोई डेटा या नंबर्स होने चाहिए. बिहेवियरल साइंस एक रिसेंट मोस्ट एडिशन है इस सारी अंडरस्टैंडिंग में. What's the one thing you regret? Hello and welcome everyone to another episode of the Digital Pakistan podcast. My name is Asma Ijaz Khan और आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे some very interesting, unique and controversial takes and theories regarding social media, mental health, happiness and just education in general in the country. People like me and you have different opinions based on what we hear on social media or hear from our friends. To make sure that we have some sense in this conversation, we've brought in a very special guest, the executive director of the biggest social research company in the country, Gallup, who will help us understand what's real and what is not real. Thank you so much for taking out the time, Bilal, and joining us for this conversation. Thank you for inviting. So the thing about our podcast is that we don't introduce our guests, but we give them the opportunity to introduce themselves. So apart from your title and whatever you do for a living, we would like to understand who you are as a person and how did you get to this point. I was kind of born into this occupation because my father set up this survey research firm. But over the life period, I had a fascination with numbers. And in order to understand the world, like how can one make sense of this complexity, I thought numbers, even in the childhood, I could understand those numbers and wanted to make sense through numbers. So I would think I'm a data person. I would also think I'm an optimistic person, and I think those who deal with numbers can sometimes be very gloomy. But to the contrary, I would think that I have a hopeful image of the country, but also in general of people around me as well. Were you always good at math? That means I would think I have an interest in maths. I wouldn't say my field really requires some very deep mathematics, but it requires a very common sense understanding of numbers. I would be able to add up numbers very quickly, or to look at statistics and look beneath the numbers into what they meant. So more on the analysis side and less so on the mathematical numbers side. just हमारा format timeline based है, तो we have past, present and future. We'll start from the past. Before we talk about anything else, I would like to understand कि research in Pakistan, you said कि आपके अब्बू ने company set up की, so even before you were part of this company officially, you must have known and seen कि कैसे evolution आई, right? So what was research in Pakistan पहले and how did it come about and what do you feel like is the best way is research to contribute here towards the growth or prosperity of this country? So the firm's name comes from Gallup, and this Gallup person was Dr. George Gallup, who used to teach at Princeton University. And the story kind of goes like that my father, who set up the firm, was studying at MIT. He decided to go to Princeton, meet this Dr. George Gallup. And this elderly Texas man teaching at Princeton was setting up these small institutions around the developing world. और उनका ये ख्याल था कि ये जो मैथ एक साइंस है जो कि ऑलमोस्ट एक मैजिक लगती है कि आप एक छोटे से सैम्पल से किसी पूरे बड़े से मुल्क के बारे में एक राय कायम कर सकते हो मल्टीपल सर्वेज के थ्रू. सो उन्होंने इनकरेज किया मेरे वालिद साहब को कि आप पाकिस्तान जाएं और पाकिस्तान में पहला एक सर्वे का इदारा कायम करें. So that's where the genesis is. But over the years, I think जब हम the idea came to Pakistan, people were very skeptical. एक मैजिकल सी बात लगती है कि एक उस वक्त के ज़माने के लिहाज से भी 8 करोड़ का पाकिस्तान था. तो उसमें सर्वे कैसे किया जाएगा, क्या यहाँ पर सेंसस एग्जिस्ट करता है, डेटा किस हद तक का है, लोग क्या कहेंगे अगर कोई शख्स जो है वो दरवाज़ा नॉक करके आपसे कुछ सवाल पूछता है, क्या लोग खुश होंगे, नाराज़ होंगे. और मगर हमने पिछले 30-40 साल में एक ना सिर्फ इसको एक साइंस को एक्शन में कन्वर्ट कर लिया बल्कि एक साइंस को एक इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर लिया. सो इस वक्त जो सर्वे रिसर्च इन पर्टिकुलर है, इस तरह की तकरीबन 20 कंपनियां हैं. इसी के साथ साथ आई थिंक तसलसल में जो रिसर्च कल्चर है पाकिस्तान में कि अगर आप कॉन्वर्सेशन करते हैं तो आपके पास कोई डेटा या नंबर्स होने चाहिए. अगर आप कॉन्वर्सेशन करते हैं तो आप सिर्फ तखमीनों के बजाय आप किसी रिसर्च का हवाला दें, किसी
कोई साइंटिफिक मेथड यूज़ करें, अपने बायसेस से बाहर निकलने की कोशिश करें। तो ओवर द पास्ट 40 years the industry has developed, the survey method has developed, the general big data around that flows around has significantly improved as well. और इसने आसान किया है लोगों को अपने बायस से बाहर निकलने के लिए। सो बिहेवियरल साइंस एक रीसेंट मोस्ट एडिशन है इस सारी अंडरस्टैंडिंग में, और उनका ये कहना है कि इंसान जो है वो जब अगर साइंटिफिक मेथड से ना सोचें तो वो जो उसको करीब तरीन इंफॉर्मेशन होती है उसको वो यूज़ करके करता है। जो चीज़ उसको सबसे ज़्यादा अपीलिंग लगती है, तो अगर आप कलर्स चेंज कर दें, अगर आप आवाज़ चेंज कर दें, तो इंसान जो है, माइंड जो है वो बहुत ईजीली मैनिपुलेट हो जाता है। And therefore, the need for a scientific, organized, fact-based matter, ताकि आप बायसेस से आज़ाद होकर कोई अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकें। और वो डिसीजन मेकिंग कोई ऐसी नहीं है कि आप हुकूमत ही की लेवल पे हों, आप कारोबार के लेवल पे हों। हमारा ये ख़्याल है कि जो डेटा हम प्रोवाइड करते हैं या रिसर्च इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है, वो लोगों को एक अच्छा इंसान बनने में, एक अच्छा हस्बैंड बनने में, एक अच्छा बेटा बनने में, बेटी बनने में भी मदद देता है, क्योंकि वो उस बायस से और उस नी जर्क रिएक्शन के बजाय हम उनको कन्विंस कर रहे हैं कि आप किसी साइंटिफिक और किसी सोच समझ कर और किसी डेटा बेस्ड हवाले से आगे चलें। व्हेन आई थिंक अबाउट दिस होल प्रोसेस, मुझे ऐसे लगता है अभी इवन करंट उसमें भी हम फेस करते हैं। एक तो लोग डेटा देने में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, एंड देन व्हाट्स द गारंटी जो मेरा सर्वे फिल कर रहे हैं वो ठीक फिल कर रहे हैं। समटाइम्स लॉट ऑफ टाइम्स आई रिमेंबर बैक इन माई यूनिवर्सिटी जब हमने करना होता था, टाइम नहीं है, सो आई वुड लाइक प्रिटेंड टू बी 10 more people and just fill that survey, and sometimes I would do things here and there because मुझे पता था मेरे प्रोजेक्ट को ये रिजल्ट चाहिए, so I'll just take it out. तो how do you deal with that? बिल्कुल। सो इस पे दो डिफरेंट तरीके हैं जो हम यूज़ करते आए हैं बहुत अरसे से। तो एक तो पहली चीज़ ये कि हम जो इंटरव्यूअर है वो एक प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन है। सो जो सर्वे कंपनीज़ हैं वो इंटरव्यूअर्स हायर करती हैं, उनकी बहुत मैसिव ट्रेनिंग होती है, फिर उनकी क्वालिटी एश्योरेंस होती है, डेटा फीड करता है मुस्तकिल उनके हवाले से, जैसे किसी और ऑक्यूपेशन के हवाले से, जैसे डॉक्टर के हवाले से होती है, रिसर्चर के हवाले से होती है। उस ट्रेनिंग में एक बहुत बड़ा जो कलीदी चीज़ है जो हम उनको सिखाते हैं वो ये कि आपने जो रिस्पोंडेंट है उसको कैसे कन्विंस करना है कि वो आपको जवाब दे, और जब जवाब दे तो वो ऐसा जवाब दे कि जो रियलिटी के करीब तरीन है। और तो स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स और जो आर्ट ऑफ कन्विंसिंग द अदर है, इट इज़ अ वेरी क्रूशल टास्क। एंड देयरफॉर जो सर्वे इंडस्ट्री है, ये इसका जो क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमेट है या जो रिसोर्सेज हमें, ह्यूमन रिसोर्स हमें अवेलेबल होते हैं, वो साइकोलॉजी की फील्ड से है। सो हम कोशिश करते हैं कि हम जो रिस्पोंडेंट है उसकी साइकी को पहले समझें, उसको कन्विंस करें कि उसका डेटा यूज़ नहीं होगा। The other is that industry has now come up with scientific, technological methods to ensure कि जो इंटरव्यूअर है उसके ऊपर एक निगाह रखी जा सके। तो जब हम किसी को कहते हैं कि आप चागी में जाकर किसी घर का इंटरव्यू करें, तो वहाँ पर हम उसका GPS लेते हैं, फिर हम बहुत से केसेस में रिस्पोंडेंट की कंसेंट से वो इंटरव्यू रिकॉर्ड करते हैं, फिर AI की मदद से इंटरव्यू को एक्चुअली अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या वही सवाल पूछे गए, क्या सवाल पूछने की जो नौइयत थी वो अच्छी थी, नहीं थी। तो टेक्नोलॉजी एंड द ह्यूमन एक्सपीरियंस दोनों को मर्ज करके द आइडिया इज़ टू मेक श्योर दैट द डेटा दैट गोज़ इन is of high quality, because the analysis is only going to be as good as the data that goes in. बिल्कुल। अच्छा, what have you seen कि क्या ट्रेंड है when it comes to people accepting the information that comes out of a survey? क्योंकि वही आप कह रहे हैं ना, most of the time हम ओपिनियन तो अपनी मर्जी से बनाते हैं, but if I'm not willing to admit something, तो I'll just find a reason to discredit that information, right? तो उसमें आपने कोई ट्रेंड देखा है कि people were maybe not willing to accept it पहले, but now आहिस्ता आहिस्ता they trust it more? So I would think that different types of people always exist, और ये साइकोलॉजी में भी एक्सप्लेन किया जाता है कि और हर इंसान भी मुख्तलिफ औकात पे मुख्तलिफ बिहेवियर्स रखता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं और कुछ ऐसी सिचुएशंस में होते हैं कि जब उनके जो हेल्ड बिलीफ है उसको अगर आप किसी फैक्ट से झटका दें
तो उनका फर्स्ट रिस्पॉन्स ये होता है कि वो जो मैसेंजर है उसको आप किसी तरीके से कन्विंस कर लें, थ्रेटन कर लें कि वो जो हेल्ड बिलीफ है उसको आप वो वैसा ही रखना चाहते हैं। मगर ज़्यादातर लोग एक्चुअली रियलिटी को समझना चाहते हैं, और इंसान का जो जहन है वो भी यही कोशिश में लगा हुआ होता है कि किसी तरीके से उस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि एक कॉग्निटिवली बर्डन है अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी रिजॉल्व नहीं हो रही। सो हमारी अपनी लर्निंग ये है कि ओवर द ईयर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हैव डिफरेंट इंटरेस्ट, समटाइम्स देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कोई डेटा आपका नुकसान कर रहा होता है, बट ज़्यादातर इंसान जो हैं वो फैक्ट बेस्ड कॉन्वर्सेशंस को पसंद करते हैं, उसको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझते हैं, उसके थ्रू अपने बिहेवियर और एटीट्यूड को बदलने की ख्वाहिश रखते हैं। क्या वो बदल पाते हैं या नहीं बदल पाते, ये एक और कहानी है, मगर ये कि जनरली देयर इज़ अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड इन द पास्ट 4 decades. अच्छा, एक और चीज़ जो मेरे जहन में आती है कि व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग अ होल कंट्री थ्रू अ डेटा सेट, सो हमें अक्सर बताया जाता है ना, रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन में देयर इज़ द वास्ट डिफरेंस। लिटरेसी की भी बात भी आती है, बिलीव्स की बात आती है, एक्सेप्टेंस की बात आती है। सो आपने कभी कोई इस तरह के मेजर डिफरेंसेस देखे हैं व्हेन यू आर कंडक्टिंग अ रिसर्च इन अ रूरल एरिया एंड अर्बन, एंड व्हेन यू हैव टू कंबाइन दोज डेटा सेट्स, तो उसमें कोई maybe like some any good insight or a trend that you've seen? So I think the urban और rural पाकिस्तान में बहुत से इशूज़ के ऊपर बहुत सा डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। जो रूरल इलाकों के लोग हैं और अर्बन इलाकों के लोग हैं, उनकी जो लिव्ड रियलिटी है वो बहुत मुख्तलिफ है। हम इस्लामाबाद शहर में बैठे हैं जहाँ पर हर साल अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर आप गांव में चले जाएं तो वहाँ पर हुकूमत नाम की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। अभी भी बहुत से इलाकों में एक इनफॉर्मल गवर्नमेंट है, किसी वडेरे की है, किसी लार्ज लैंड ओनर की है। सो देयर इज़ अ मैसिव डिफरेंस, एंड देयरफॉर जब भी हम स्टेटिस्टिक्स अपने देते हैं तो हम अर्बन और रूरल पाकिस्तान को दो मुख्तलिफ टेबल्स में एक्सप्लेन करते हैं। पाकिस्तान एक नहीं है, मुख्तलिफ पाकिस्तान है। एक अर्बन पाकिस्तान है, एक रूरल पाकिस्तान है, एक मर्दों का पाकिस्तान है, एक ख़वातीन का पाकिस्तान है, एक यंग लोगों का पाकिस्तान है, एक बुढ़ापे के लोगों का पाकिस्तान है, एक अमीर का पाकिस्तान है, एक गरीब का पाकिस्तान है। और ये जो रियलिटी है कि पाकिस्तान को एक समझ कर आप आगे बढ़ें, ये एक वन ऑफ दोज बिगेस्ट हर्डल्स है इन ऑर्डर टू एक्चुअली ट्रूली अंडरस्टैंड। क्योंकि रियलिटी क्योंकि हर पाकिस्तानी के लिए मुख्तलिफ है, इस वजह से हर पाकिस्तानी को समझने के लिए, उस सेगमेंट को समझने के लिए डेटा को ब्रेक करना लाजमी है। अर्बन और रूरल में आई वुड थिंक दी फर्स्ट जो हमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस महसूस होता है वो ये कि जितना आप अर्बन इलाकों में मूव करें उतना सर्वे करना मुश्किल हो जाता है। Really? सो जो गांव के लोग हैं, जब हम उनको दस्तक देते हैं तो वो बाहर आते हैं, हमसे कहते हैं हम आपसे सवाल करेंगे, तो वो फ़ौरन से ये सोचते हैं कि ये शख्स कहीं दूर दराज से सफ़र करके आया है और मुझसे सवाल करता है, तो शायद मेरी ज़िंदगी में उसको कोई दिलचस्पी है। तो ना सिर्फ हमें वो कहता है कि आप बैठें, बल्कि वो पहली चीज़ ये होता है कि मैं आपके लिए पानी लाऊं। फिर जब कॉन्वर्सेशन शुरू होती है तो वो कहते हैं कि मैं आपको चाय पिला सकता हूँ, और फिर वो एक कॉन्वर्सेशन अक्सर औकात उतने टाइम पीरियड से भी एक्सीड कर जाती है जितने एक हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि इंटरव्यू इतना टाइम लगाए। शहर से भी जब हम आते हैं तो यही चीज़ जो पहला दस्तक है वो किसी शकूक व शुबहात को जन्म देता है। जो दरवाज़ा खोलने वाला है, अक्सर औकात कोई हाउस हेल्प बाहर आती है, और जो दरवाज़ा खटखटाने वाला है वो ये सर से पैर तक बंदे को देखता है, उसके जहन में ये fears develop होते हैं। तो there is the rural and more poor you are, the more hospitable. Which is so weird because in my mind, maybe the urban population would have been more open to like these things. And the reality is the exact opposite. And I think the urban Pakistan is very short on time, just like any urban and developed society. And the less developed you are, the more hospitable, because आपके पास वक्त भी है और आप दूसरे शख्स को एक इंसान के तौर पे ट्रीट करते हैं। तो एक बड़ा विजिबल डिफरेंस तो ये है। मगर इसके अलावा बहुत से डिफरेंसेस हैं जो हम आगे जाके दे सकते हैं, एजुकेशन में, लिटरेसी
की हद तक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, हैप्पीनेस में, और अगेन हैप्पीनेस का रिलेशनशिप भी कुछ इनवर्स है जो हमारी यूजुअल लॉजिक है. अच्छा, एनी स्पेसिफिक इनसाइट जो आपने अपने करियर में की हो अब, एंड व्हेन यू केम अक्रॉस यू लाइक दिस गोज अगेंस्ट ऑल माय बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस. I mean, I'm sure you come across many things like that, but कोई एक चीज़ जो that stayed with you, that helps you have more faith in this system कि नहीं, surveying and then research is very very important. सो एक मैं और आप उसी पाकिस्तान में रहते हैं जिसमें अगर आप रात के 8 बजे का एक टॉक शो खोल लें तो पाकिस्तान की रियलिटी के बारे में जो कॉन्वर्सेशन है वो पेसिमिज्म वुड प्रोबेबली बी अ स्मॉल वर्ड फॉर इट. इट इज़ बियॉन्ड पेसिमिज्म नाउ कि अब कब पाकिस्तान कोलैप्स करता है. और कॉन्वर्सेशन जो है वो सिर्फ टॉक शो तक नहीं है, हर घर की कहानी है, हर शख्स की कहानी है. और जब मैं इस रियलिटी को जो कि मीडिया पे एक्सप्रेस होती है, घरों में डिस्कस होती है, उसको जब मैं अपनी दूरबीन जो डेटा की है उसको लगा कर और थोड़ी सी देर के लिए इस तरह के एक स्टूडियो में बंद होकर जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ डेटा की कॉन्वर्सेशन हो और मैं किसी ट्रेंड लाइंस को मेजर कर रहा हूँ, मैं एक ऑब्जेक्टिवली कोई मेजर्स उठा लूँ और उनके ऊपर पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को और उसके मुख्तलिफ सेगमेंट्स को नापूँ, तो मुझे रियलिटी और परसेप्शन में बहुत बड़ा गैप नज़र आया. और ये गैप जो है वो किसी एक इंडिकेटर पे नहीं है, मल्टीपल इंडिकेटर्स पे है. मसलन सन 2000 जो आज से 25 साल पहले की बात है, जब मैं और आप शायद स्कूल या कॉलेज में थे, उस वक्त का पाकिस्तान सिग्निफिकेंटली गरीब था आज के पाकिस्तान से. हालांकि कॉन्वर्सेशन ये है कि हमारा पास्ट हमसे बेहतर था. रियलिटी नंबर्स की ये सजेस्ट करती है कि सन 2000 का पाकिस्तान में गुर्बत की शरह से नीचे रहने वाले लोगों की तादाद 70% थी. और अगर आप वही फीता जो गुर्बत का लेके आज गुर्बत नापने जाएं तो आपको 20% मिलेगी. तो 70% से 20% तक का जो कोलैप्स है पावर्टी का, अच्छा ये सिर्फ पावर्टी की हद तक नहीं है. अगर आप सन 2000 में जाएं तो ये यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अफराद की तादाद 2 लाख थी. सन 2025 में 30 लाख पाकिस्तानी इस वक्त यूनिवर्सिटी एजुकेशन में की किसी स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं. तो 1947 से लेके 2000 तक हमने जो यूनिवर्सिटीज़ में पैदा की वो 34 थी. सन 2025 में 250 यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं. अगर आप PhDs देखें तो ईयर 2000 तक total PhDs produced in Pakistan were 2000. Wow. इस वक्त currently there are 7,000 PhDs in the stream, and between 2000 and 2025 we produced 50,000 PhDs. So एक तरफ 47 से लेके 2000 तक 2000 हैं. So I think for me the shocking part is the difference between the reality and the perception, and somehow that there is a perpetuation of that feeling. ऐसा हरगिज़ नहीं है कि पाकिस्तान में हालात ज़बरदस्त तरीन हैं. यकीनी तौर पे बहुत से उसी दूरबीन से, उसी माइक्रोस्कोप से अगर आप पाकिस्तान को देखें तो आपको पाकिस्तान बहुत सी चीज़ों में और नेशन से लैग बिहाइंड करता हुआ नज़र आता है. मगर that doesn't explain the level of pessimism that Pakistan currently has. The reality and the pessimism do not match, and for me this could not have been possible if you did not use a data-based lens. I could also I live in the same world where लोग दर पर दर मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं. यंग जनरेशन मुल्क से बागी है और राइटली सो बागी है. मगर अगर आप डेटा की लेंस से देखें तो आपको जो फर्स्ट कट बायसेस हैं उनसे आज़ाद होकर एक रियलिटी नज़र आने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है. यू वुड ऑलवेज हैव टू take that opportunity and be sincere with that opportunity, but the method provides you that possibility. That is so interesting. लेकिन अगर मैं उस पर आपका पर्सनल ओपिनियन पूछूं, why do you think then people sell this fear and despair? Because this sells more. Is it hard to have more viewership for my talk show if I talk about the positives of the country? Do you think that's the reason?
So I think definitely this is one part of the story. So I think the media and the social media algorithms, the way they've been designed, has certainly contributed to this. और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, दुनिया के ज़्यादातर डेवलपिंग वर्ल्ड में ये हो रहा है. इवन डेवलप्ड वर्ल्ड में भी जब इलेक्शन मैनिपुलेशन की कॉन्वर्सेशंस आई हैं तो यही बात आई है कि किसी जो आपके ओपोनेंट की परफॉर्मेंस है उसके बारे में एक कंप्लीट डिस्पॉन्डेंसी क्रिएट की जाए, और वो डिस्पॉन्डेंसी एल्गोरिदम्स जो हैं, तो इंसान की जो बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है उसमें देयर इज़ अ थियरी ऑफ लॉस अवर्जन which basically suggests कि आपको अगर ये कहा जाए कि आपको नुकसान हो रहा है और दूसरी तरफ आपको कहा जाए कि आपको फ़ायदा हो रहा है, तो ह्यूमन इंस्टिंक्ट ये है कि वो लॉस को जो वैल्यू देता है वो सिग्निफिकेंटली मोर है. सो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा मगर जो परसेप्शन है वो सिग्निफिकेंटली मोर होगी. सो देयर इज़ this social media algorithms at play. But then there is also another part to it, which is that the elite in the country have been losing out. So 1960s का पाकिस्तान 22 ख़ानदानों का पाकिस्तान था कि जिसमें एक तबके के पास तमाम ताकत मौजूद थी. वो तबका अपने सियासी, अपने समाजी ख़यालात को पाकिस्तान पर काबिज़ करके रखता था. उनके लिए एक एंड सिंस देन 70s में डेमोक्रेटाइजेशन हुई, बहुत सी चीज़ों की नेशनलाइजेशन की गई, लेबर यूनियंस कायम की गई जिनका इकॉनमी पे बहुत बुरा असर पड़ा, मगर वो जो पावर थी 22 ख़ानदानों से वो आवाम तक डिस्ट्रीब्यूट हुई. 80s एंड 90s में एक्चुअल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स बने, उनमें ब्यूरोक्रेसी में आम पाकिस्तानी को इंक्लूड किया गया. शहरों में अर्बनाइजेशन, अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है विच बेसिकली सेज कि 80% ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली लिव्स इन अर्बन एरियाज़. तो अर्बनाइजेशन के हो जाने से वो जो एलीट पाकिस्तानी 3 शहर थे उनसे पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई. तो एक पर्सपेक्टिव ये है कि वो जो एलीट इन द कंट्री हैं वो जब अपनी आंखों से देखते हैं कि पहले तो हमारे अलावा कोई और किसी और का गुण नहीं गाया जाता था, उनके भी परसीव्ड पाकिस्तान की जो रियलिटी थी वो उनको अच्छी लगती है, उनको साफ़ शहर अच्छे लगते हैं, मगर उनको ये बात अच्छी नहीं लगती कि शहर साफ़ थे मगर शहर बहुत छोटे थे. रोडें साफ़ थी क्योंकि गाड़ी चलाने वाले या मोटरसाइकिल चलाने वाले एग्जिस्ट नहीं करते थे, या हमने मुख्तलिफ रेगुलेशंस के थ्रू उन गरीबों को आपके शहरों में आने नहीं दिया था. तो पार्ट ऑफ द रियलिटी, पार्ट ऑफ द डिस्पेयर इज़ बीइंग ड्रिवन बाय द एलीट हु फील नाउ दैट दे आर कॉर्नर्ड इन अ डेमोक्रेटाइज्ड पाकिस्तान. आई एम सर्टनली नॉट एडवोकेटिंग कि जो शहर हैं वो हम गंदे ही छोड़ दें. हम एजुकेशन जो प्रोवाइड हो गई है उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट ना करें, बट आई ऑल्सो फील कि जो डिस्पेयर का नैरेटिव है उसके जो टेकर्स हैं they're not doing any major service to them and might be also doing this out of their own interest. Yeah, very interesting. Acha, before we move on to the next segment, we'll do our first gaming segment. It's called Up Close and Personal. The idea is to get to know you a little bit more. So are you ready? I'm ready. So what's the most difficult decision you've had to make at work? I think in COVID, the situation business situation was not great, and I had to let go of many of my colleagues who had been with us for a very long time, and for me that was a very hard decision to make. Most of our guests have like quoted this example. Unfortunately, yeah, COVID में ऐसा था. So what's the most unusual job you've had? When I was in O levels, there was a market research study that we were doing, which involved going to bus adda, talking to bus drivers about motor oil. तो मुझे याद है कि वो तकरीबन 40 डिग्री का मौसम था और मैं जो है वो एक और रिसर्चर के साथ टैक्सी पे जो पिंडी में जो बस स्टेशन है वहाँ गया. फिर रोड साइड कैफ़े पे बैठ के हमने दाल चावल खाए. फिर हम किसी ड्राइवर को रोक के उससे कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करते थे. तो वो एक रियल लाइफ डेटा कलेक्शन की जो एक्सपीरियंस था एक लारी अड्डे पे, वो मुझे महसूस हुआ कि आई फेल्ट दैट द इंटरव्यूअर्स हु
do that data collection for us pass through such a difficult time, and convincing yeah. people and being in that environment is not an easy thing for anyone. Not easy at all. So, what's your favorite Pakistani tech startup? I would think anyone who's doing the e-commerce bit, Hmm. maybe Draz. Hmm. They're not just that they are providing an ease for the consumer, मगर मुझे महसूस होता है कि उस तरह के इनिशिएटिव्स जो हैं जो पाकिस्तान की जो ग्रोथ अनलॉक करने में बहुत मददगार साबित हो रहे हैं, कि वो गली कूचे में, गाँव शहर में मर्द और ख़वातीन जिनके पास Empowerment है ना एम्पावरमेंट basically. प्रोवाइड कर रहे हैं, Yes. अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम ये दिखाता है कि अगर पाकिस्तान आज यहाँ खड़ा है और हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान यहाँ खड़ा हो जाए, तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ लैकिंग है वो अपॉर्चुनिटी है. सो ख्वाहिश में कोई कमी नहीं है, कैपेसिटी में कोई कमी नहीं है, जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत रिस्ट्रेंट है. एंड ऑल टेक स्टार्टअप्स दैट हैव provided an opportunity or a window for people to sell their services, and businesses are doing that very great service of unlocking that growth. So, if you could trade lives with anyone, who would it be? Maybe I wouldn't trade it. I'm very happy with it. You're a positive person, so I think, yeah. So, what's the one thing you hate about your job? I think it's data job can be a bit lonely as well. So it is, and I mean, being at the top of an organization can also be lonely. So I think being not able to relate to other people in that sense, I think data kind of makes you a bit lonely in the end. If you were a superhero, who would you be? I guess मेरी बेटी जो है उनको सुपरमैन देखना बहुत शौक है, तो मैं आई समटाइम्स आइडियलाइज सुपरमैन एंड हिज एबिलिटी टू डू समथिंग फॉर द एवरीवन. Yeah, okay. So, what's the most daring thing you have done in your career? Maybe in some ways continuing to be in Pakistan when most of my friends have left. Yeah, So yes, okay. it could be one of those daring things. Do you have a secret talent? Unfortunately not. Yeah. I like to think I have, but Okay. So, what's the one thing you regret? I think maybe sometimes when a survey result comes out, and it becomes a story on a prime time, and a lot of people who come and ask this questions कि एक सर्वे 1000 लोगों का कैसे 25 करोड़ पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो आई रिग्रेट द फैक्ट कि हमने 45 साल में इन जैसे अफराद को भी कन्विंस नहीं कर सके कि एक साइंटिफिक मेथड एग्जिस्ट करता है. सो being not able to do that well, and I every day when I wake up I try to find ways of how we can communicate to those people and let them know that there is a scientific method to learn data. So, what's one piece of advice you would give your younger self? I think education in Pakistan can sometimes take you away from humility. It can be an experience जो आपको आम पाकिस्तानी से और एक आम बंदे और ख़ातून से कम्युनिकेट करने से में डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस करता है. सो इफ़ आई हैड एन अपॉर्चुनिटी, तो I would undo that particular part of my learning in which made it difficult कि आप एक आम पाकिस्तानी और उसकी कंसर्न से रिलेट कर सकें और एक ह्यूमन और एक ह्यूमिलिटी के साथ अपनी सक्सेस और अपनी एजुकेशन को साथ लेके चल सकें. I've observed about you, Bilal, you have this thing where you really acknowledge your privilege and you are very vocal about it also, which I think is not very common. Okay, a lot of people just think, ठीक है. Is it because of how you were raised, or you think your job also plays a very important role in this because you get to see so many realities जो शायद हम लोग इतना often interact नहीं कर पाते जिससे? I think it's partly to do with the upbringing. So and I think the fact that one exists in Islamabad, and I mean just to look around from this studio and be having that privilege of being in a city
I think is something that really contributes and is a daily reminder that one has to do something for others, because I mean in some ways the city that I live in is came to be with what many people around the country have earned. Yeah. इस्लामाबाद कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं करता, इस्लामाबाद एक Hmm. हुकूमत है, हुकूमती शहर है, तो इसलिए तमाम पाकिस्तानियों का हक है जो इस्लामाबाद जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. दूसरी आई थिंक आई लुकिंग एट द डेटा आई ऑल्सो फील हाउ स्मॉल माइनॉरिटी दैट elite in the country is. Hmm. I will give you some numbers which are every day which shock me. एक आम पाकिस्तानी घराना जो है वो आज भी 100 में से 40 घराने लकड़ी जलाकर रोटी या सालन पकाते हैं. आई हैव नेवर बीन इन दैट सिचुएशन कि जिसमें आपको अपने किचन में जाके कहीं से लकड़ी ला के आग लगानी पड़े, एंड द फैक्ट कि आज जो बनाने वाली खातून है उसको उसके मुस्तकिल धुआं उसके ऊपर चढ़ रहा है. Yeah. और एक पूरे दिन की एक्सरसाइज है. एक आम पाकिस्तानी घराने के 100 में से सिर्फ 10 घरानों के पास गाड़ी है. None of my relatives or none of my friends ever were in a situation जिनके पास गाड़ी नहीं थी. तो एक आम पाकिस्तानी की रियलिटी और जो हम जैसे जो लोग हैं who haven't done much for to deserve all of this, it is what the country has given to us or what the circumstances have given to us. I would think that we need to be continuously thinking about how we can pay back to the society for the privileges that only this nation offers to us. When I think about it, I feel like it's not just about being informed, but data can maybe help in making sure कि लोगों में empathy भी हो. Because when we know these things, we can be more like, welcoming to other people and understanding of what other people are going through. बिल्कुल. और आई थिंक एक फिलोसोफर हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ. इज रिटन अ बुक ऑन on how merit basically creates a sense of not being very human. So this whole idea कि एजुकेशन जो है वो आपको ह्यूमिलिटी से दूर ले जाती है और आपको ये फीलिंग कि आपकी सक्सेस सिर्फ आपकी गिविंग, आपकी अपनी एफर्ट से है. ये एक मॉडर्न एजुकेशन की एक फ्लॉ है. तो आई रियली फील कि जो people who are privileged in the country ought to really recognize that. I mean, it's a whole ecosystem that created that them enables you, yes. that enables them, and it's time for them to also contribute back in whatever way they can. Great conversation. Acha, ab we will move on to the next segment called the present. Isme before we get into like data related stuff, I want to understand कि as a person, what do you feel like is एक दो इनिशिएटिव्स जो आपको लगता है आपने ज़िंदगी में किए हैं दैट यू विल लेबल एज योर वे ऑफ गिविंग बैक टू द कम्युनिटी. सो हमने रिसेंट टाइम्स में एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिसको हम कहते हैं गैलप पाकिस्तान डिजिटल एनालिटिक्स प्रोग्राम. एंड द आइडिया इज़ कि पाकिस्तान में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो डेटा सेट्स हैं उनको किसी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए कि जो आम पाकिस्तानी, एक आम रिसर्चर, एक आम स्टूडेंट के लिए एक्सेसिबल भी हो जाए. उसमें प्लेटफॉर्म में वही बात जो कॉम्प्लेक्स है उसको आसान तरीक़ों से एक्सप्लेन कर दिया जाए. तो आप पाकिस्तान के हवाले से किसी भी पहलू को उठा लें और अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो आप हमारे उस प्लेटफॉर्म पे आएँ, आपको वो किसी न किसी तरीके से एक डेटा बेस्ड रिस्पॉन्स क्रिएट करके देगा. तो हमने पाकिस्तान का जो डिजिटल सेंसस हुआ 2023 में उसके ऊपर एक डैशबोर्ड बनाया है. अगर आप अपने फ़ोन के ऊपर किसी ऐप को यूज़ करते हैं तो आपके लिए वो पाकिस्तान का सेंसस अब उतना ही एक्सेसिबल हो गया है. आप अपने इलाके के हवाले से जहाँ आप रहते हैं आप उसके बारे में ये जान सकते हैं कि वहाँ पर कितने लोग पढ़े लिखे हैं, किस तरह की सहूलियात अवेलेबल हैं, पहले कैसा था अब कैसा है. इस तरह अगर आप हमने लेबर फोर्स सर्वे है पाकिस्तान का उसको डिजिटाइज़ कर दिया है. सो आई थिंक मेकिंग डेटा एक्सेसिबल and to ensure that data is actually reaching out to the right people. हमने काफ़ी एक्टिविटी की है कि हम डेटा को किसी सिंपल इन्फोग्राफिक्स में कन्वर्ट कर लें, डेटा को किसी वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, डेटा को किसी स्टोरी लाइन में कन्वर्ट कर लें. एंड ऑल ऑफ इट इज़ नॉट बिकॉज इट
creates revenue for us. All of it is to convince people that we need to move on from our biases and to look at Pakistan from a data angle, because data provides you an opportunity to look beyond what is immediately obvious to you. Yes. अच्छा, now we will get into the details जो हम शुरू में बात कर रहे थे. आपकी कुछ researches I went through and they were very interesting. The one I would like to start from, happiness index की बात की थी. The idea was कि we are happier than our neighbors. But is that enough overall पूरी दुनिया में when we do our comparison? And how do you actually identify if a nation is happy or not? वो measure किस तरह करते हैं आप लोग? KPIs क्या हैं उसके? And what does that mean for us? So, the idea to measure happiness, the idea comes from the fact that economics and economic indicators have been critiqued and criticized that if someone is high up in the income ladder, if a country is high up in the income ladder, does that really mean that people are flourishing? There are so many countless examples where the country is flourishing, but the widest majority of them are not flourishing because the country is run or owned by some oligarchs or some people with just money. Inequality इतनी ज़्यादा है. So 50s से लेके 90s तक ये economic indicators का एक बड़ा बोलबाला था. People would talk about GDP and GDP per capita. They would also talk about electricity use and would say कि जिसके पास ज़्यादा electricity use है वो वाली society अच्छी है. And then Dr. Mehboob ul Haq, again a Pakistani who rose to fame in the United Nations forums, he came up with this idea कि एक human development भी चीज़ है. Economic development और human development दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं. And then in the 90s, Bhutan एक छोटा सा मुल्क है, वहाँ पर एक Buddhist, the only Buddhist country in the world, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया कि हमें ना ह्यूमन डेवलपमेंट चाहिए ना हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए. वी आर स्ट्राइविंग दैट आवर नेशन शुड बी द हैप्पीएस्ट इन द वर्ल्ड. And technically they are also, right? They're top every year in that happiness index. So that was the idea that there is already a distinction ke economic, human, and then there is just a very basic thing that, I mean, what is all the effort that we are all doing for? It is to make ourselves happy and to make people around us happy. Yes. So this whole science, eventually after doing a lot of focus groups, a lot of different questions, a lot of different observations of people, reached this conclusion that the simplest way and the most effective way to explain कि एक बंदा खुश है या नहीं है is just to basically just ask that person if you are happy or not. And they realized that there could be examples where people would say they are happy but they're not. But this is the most easiest way to explain someone is to ask them. So यही एक सवाल है कि पूछा जाता है कि आप अपने आप को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि आप खुश हैं या नाराज़ हैं. Very tough question. Very tough question. And so the same question is asked in 150 different countries across the world almost every year since almost year 2000. और इस सवाल के ऊपर पाकिस्तानी जो हैं वो कंसिस्टेंटली ना सिर्फ इंडिया से आके हैं जो कि हम हर चीज़ में कोशिश करते हैं और इस एक चीज़ में हम कामयाब हैं, बहुत सी चीज़ों में नहीं हैं. इंडिया से आगे हैं बल्कि हम डेवलप्ड वर्ल्ड से कि जो हमसे सिग्निफिकेंटली इनकम लैडर पे आगे हैं, जो हमसे सर्विसेज अवेलेबिलिटी में आगे हैं, एजुकेशन में आगे हैं, हम उन नेशन से भी सिग्निफिकेंटली हायर परफॉर्म करते हैं. तकरीबन 10 में से 7 पाकिस्तानी कंसिस्टेंटली कोविड और इकोनॉमिक डाउन टर्न के 2-3 साल निकाल दें तो ये शरह 6 से 7 पाकिस्तानी आउट ऑफ 10 जो हैं वो मुस्तकिल कहते हैं कि हम खुश हैं अपनी ज़िंदगी में. Do you think it's because we're delusional? Yeah, it's true when people say money can't buy happiness. So a lot of people, I mean, and I mean, I sometimes also feel that कि maybe we settle for too less. कि जो है बस सही है, हम मेहनत नहीं करना चाहते तो हम कहते हैं जो मिल गया तो ठीक है. I think I would explain, and a lot of people ask this question, how is it? I mean, it's very counterintuitive. It's partly counterintuitive because
there is also again within this a gradation. Different Pakistanis feel differently around this. The more educated and the higher income you have, the less likely you are to say that you are happy. And the poorer you are, and the higher the likelihood that you are happier. And the reason why I feel that this might be happening is because पैसा कई दफ़ा आपको जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो दुनिया भर की हैप्पीनेस स्टडीज़ हैं, जैसे हार्वर्ड हैज़ स्टडीड फॉर ओवर 100 years अ पैनल ऑफ मेंबर्स एंड देयर फैमिलीज़, तो उन्होंने 3-4 चीज़ें गिनवाई कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो यू हैव टू लिव इन अ फैमिली. Family, the more people who live with families are happier. People who are away from their families are not happy. You also have to exist with friends, and so family and friends. And the third that they count is कि आप किसी और के लिए कुछ कर सकते हो. यानी आप अपने लिए तो कर ही रहे हैं, मगर असल हैप्पीनेस इस बात से आती है कि आप ये कह सकें कि मैंने किसी और की ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट किया है. तो हमें महसूस होता है कि जो पाकिस्तानी सोसाइटी है उसमें ये तीनों चीज़ें आज भी एग्जिस्ट करती हैं, और समहाउ हमने डेवलपमेंट के लैडर पे चलते हुए भी इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगियों से नहीं निकाला. कई लोग इस आइडिया से को अच्छा नहीं भी समझते. जब हमारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि फौतगी हो गई है तो मैं गांव जाना चाहता हूँ. हाँ. और कई दफ़ा एक पढ़े लिखे पाकिस्तानी को ये बात अजीब सी भी लगती है कि अगर कोई डिस्टेंट रिलेटिव फौत हो गया तो क्यों कोई कहीं जाना चाहता है, या कोई अगर कोई वो डिस्टेंट रिलेटिव का बच्चा पैदा हो गया है तो क्यों कहीं कोई जाना चाहता है. तो इट सीम्स दैट मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज हैव प्रोटेक्टेड ऑन टू दीज की इंग्रेडिएंट्स कि वो फैमिली के साथ रहते हैं. जॉइंट फैमिली इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पाकिस्तान इवन नाउ. अगर आप यूनिटरी फैमिली में भी रहते हैं तो आपके दोस्त अहबाब और फैमिली कहीं करीब नहीं रहती है. आप एक सवाल पूछा जाता है कि हाउ लाइकली इज़ इट दैट यू ईट अ मील विद योर फैमिली, तो पाकिस्तान रैंक्स रियली रियली हाई एज अपोज टू द डेवलप्ड वर्ल्ड, जहाँ पर लोग कम्यूट में बहुत वक्त लगा देते हैं. फैमिली को रन करने के लिए जो डिवीज़न ऑफ लेबर है बिटवीन मैन एंड वुमेन, उसकी नौयत बहुत मुख्तलिफ हो चुकी है. तो इन सम वेज दीज आर सम ऑफ द वेज वाई इवन दो वी आर पुअरर, सो हम पावर्टी लैडर पे और इनकम लैडर पे इंडिया से और बांग्लादेश से नीचे हैं, मगर इन दोनों मुल्कों से जब हम कंपेयर करते हैं the social culture basically the social culture, and I would think that we ought to own this social culture rather than be on a bandwagon of growth कि जिसमें but do you think it's changing, especially अब social media के साथ हम कर रहे हैं. Life is very different now that we have access to all this information. और जो एक western idea of success है, that makes you a very lonely person. And that is what people are trying to bring into their life also, because उनको लगता है that is the only way to earn money and be successful, right? So do you think maybe आने वाले सालों में we might not be ranking very high if these young kids end up, focusing on this stuff? I think the possibility of this is certainly very high. कि हमारे I think for 6 to 7 decades the Pakistani society has somehow kept on to these ideals. We don't have narratives around it. कोई आपको famous writers नहीं मिलेंगे जो ये कहें कि this is the Pakistani growth model, which is that हम 3-4% पे grow करना चाहते हैं ताकि massive urbanization ना हो जाए, क्योंकि urban लोग जो हैं वो अपनी सोसाइटी से कट जाते हैं. वेस्टर्न वर्ल्ड की लिटरेचर आप स्टडी करें 50s का, तो उसमें यही कॉन्वर्सेशन है कि अर्बन एरियाज आर क्राइम फिल्ड बिकॉज urban areas में there is no bonds of people to each other. These are all strangers who are together. There is this concept of anomie कि आप अपनी जगह छोड़ कर आए हैं, तो आपको जब कोई bonds नहीं मिलते तो फिर you feel exceptionally lonely even among the crowd. So there are no narratives around it, and therefore the what we see in our data is that people who were born in the year 2000, for example, and are like in their mid 20s now or younger, they have a different set of perception towards the whole issue. For them, यही जो traits हैं पाकिस्तानियों के
उनके लिए फैमिली और फैमिली की वैल्यूज़ जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक हैं, वो कंस्ट्रेनिंग हैं। उनके लिए पाकिस्तान का ये लाइफस्टाइल के जिसमें लोग मुस्तकिल एक दूसरे से मिलते रहते हैं, ये उनको सफोकेटिंग महसूस होता है। उनके लिए पैसों की वो अहमियत के जो लेवल है वो सिग्निफिकेंटली हायर रिक्वायर्ड है एज अपोज टू द अर्लियर जनरेशन. But I don't blame them. I think they were born in a Pakistan where all of these were very crucial to survive. But do we have an alternative narrative to give to them? That they have two paths to move on. एक उनके पास ये path definitely exist करता है और हमें उनके path को respect देनी है क्योंकि they are independent in their views and should be given independence. But as a society, should we give them also another narrative that there is a slow growth model that is more equitable, that is more long lasting, that is together with family and friends being around. It is less lonely. It might not have all the services, but it still has people around, because the other is to have a life with a lot of services but not a lot of people around, because आप वेस्ट में आज भी देख लें तो उनकी अपनी सेल्फ कॉन्वर्सेशन है कि फैमिली ब्रेक हो गई है, फैमिली ब्रेक होने की वजह से डिस्पेयर आ गई है, उसकी वजह से डिफरेंट हेल्थ रिस्क हैं, अल्कोहलिज्म के इश्यूज हैं, सुइसाइड के रिस्क. There is an American author who talks about death by despair, and he talks about how the American society का जो largest इस वक्त challenge है वो death by despair है. And the despair is people are dying because they're just gloomy, and the more stressed you are, the more likely are you to die. People are becoming more alcoholic, people are becoming more are dying because of suicide. So they solved the NCDs or non-communicable disease problems. They even solved the cancer problem because the health system is so well. But more people are dying because of that. So in some ways, we ought to give the younger generation a chance to choose between different options. And I think we're failing to give them those options. We're creating a situation where they're being forced into making a decision which they probably don't have enough information about. What is at the end of the alley that this path leads to? So now that we're talking about the younger population, हम education को अब अगर cover करें, you said, we talked about education and privilege. अब जब young बच्चे बड़े हो रहे हैं, people who are in 20s or maybe who've graduated, do you have any data sets that tell you कि अब जो younger population है वो education को as a tool देखती है for empowerment and progress, or do they feel like a degree is just like whatever, क्योंकि US में and all now they say कि degree is not really necessary for you to become successful. तो हमारे मुल्क में किस तरह का perception है? So I think one of the best things to have happened in Pakistan in the past 2.5 decades is that as a society we realized that education is really crucial. So if you look at the year 2000, there were millions of people who would not send their child to school at all. Now the situation is different. There are hardly households who don't send their children to school at all. Even in the COVID, when we would ask people ki, are you worried, and then we would ask why are you worried, after the fact that the employment was gone and that there is a health risk of contracting COVID, the third was कि मेरे बच्चों की तालीम का क्या होगा, उनके तो घर पे बैठे हैं तो 1 साल तक तो उनका हर्ज हो जाएगा. तो एज अ सोसाइटी आई थिंक हमने एजुकेशन को अंडरस्टैंड किया है कि दिस इज़ द वे टू प्रोपेल अस फ्रॉम, so wherever we are, it is something that would give us mobility. अभी भी मगर जो कॉन्वर्सेशन है वो डिग्रीज़ के हवाले से है कि आपके पास किस तरह की डिग्री एग्जिस्ट करती है. इसको हमने कुछ अंडरस्टैंड किया. डॉक्टर ब्राइड का एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है कि ख़वातीन को एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी, एक डिग्री प्रोवाइड करनी है, बिकॉज परसेप्शन ये है कि एक तरह की डिग्री रखने वाली खातून जो है उसका रिश्ता अच्छा हो जाएगा. मैं न्यूज़ पे देख रही थी कहीं कि आई डोंट नो, मे बी इट वाज पंजाब और समवेयर, पीपल वर सेइंग कि द गवर्नमेंट नीड्स टू इंटरवीन एंड दे शुड लिमिट द नंबर ऑफ सीट्स जो कि फीमेल कैंडिडेट्स ले सकती हैं, बिकॉज अदरवाइज मुल्क में डॉक्टर्स ही नहीं है, सब ने शादी करके घर बैठना है, तो फिर हमारा क्या होगा. बिल्कुल. सो हमने इसको मज़ीद जब अंडरस्टैंड किया तो 1 in 3 women who did get MBBS की डिग्री were not working.
उनमें से कुछ ख्वाहिश रखती हैं काम करने की, मगर जो मेल डोमिनेटेड स्ट्रक्चर है, वो चाहे माँ बाप का हो या हस्बैंड एंड अदर्स का हो, उसने ये इंश्योर किया है कि ख़वातीन के लिए एक ऐसा निज़ाम बन जाए कि जिसमें वो अगर ख्वाहिश भी रखती हों तो बाहर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो इतनी लिमिटेड हैं. The infrastructure to travel is just not there. The cities that we've built are not well attuned to giving women that opportunity. So इसलिए अभी तक हमारे यहाँ कॉन्वर्सेशन डिग्रीज़ की है. इसी वजह से आपको ये महसूस होगा कि डिग्री याफ्ता लोग तो बहुत से हमने पैदा किए, मगर जो स्किल्स याफ्ता लोग हैं वो आपको आज भी शहर में ढूंढने से मुश्किल से मिलते हैं. सो डिग्री वाला जो है, एक आम डिग्री वाला 25 एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो है, उसके हमने जब सर्वे किया तो हमें मालूम हुआ कि एक आम जो बेसिक स्टार्टिंग पे इज़ 25,000. सो जो 3 मिलियन अंडर ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस 3 मिलियन जो इस वक्त हैं, हर साल 6 लाख ऐड हो रहे हैं, उनकी जो स्टार्टिंग पे है वो 25,000 है. मगर अगर आप प्लम्बर हैं या अगर आप कारपेंटर हैं तो आप आसानी इससे सिग्निफिकेंटली ज़्यादा कमा सकते हैं. तो ये क्यों हो रहा है कि लोग डिग्री हासिल करना चाहते हैं मगर वो स्किल्स जो कारपेंटर की हैं या इलेक्ट्रिशियन की हैं वो हासिल नहीं करना चाहते? तो ये अभी तक वो जो फैसिनेशन है कि 4 साल का अंडर ग्रेजुएट जो है वो एक बेहतर डिग्री है, सिर्फ ख़वातीन की हद तक नहीं है. जब हम मर्दों से पूछते हैं कि आपने ये क्यों नहीं किया, आप एक डिप्लोमा कर लेते, उस डिप्लोमा के बाद हो सकता है आपको सऊदी अरब में जॉब मिल जाती. तो लोग ये कहते हैं कि वालिदैन ने हमें बताया है कि अगर मेरे पास BA की डिग्री ना हुई तो मेरी शादी कैसे होगी. सो इट्स नॉट जस्ट अ वुमेन इशू, इट्स अ मेल इशू एज वेल, दैट देयर इज़ अ परसेप्शन. बहुत ही अब रिसेंट 4-5 साल में ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो ये कहते हैं कि अब वो उन्हें तो काफ़ी क्लियर है कि उन्हें यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं चाहिए, but the social value that as a society we have attached to it, they're doing it because of that. And I think it is one of those questions that we need to think about कि हमने ये जो millions of undergraduates पैदा किए हैं, इनमें से मिलियंस में से लाखों में ऐसे हैं कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस में गए हैं और अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानी हाउस होल्ड्स ने उन बच्चों पे और बच्चियों पे की है. तो हमें रीथिंक करना है कि अगर वो जो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट यू हैव डन, उसके बाद अगर हमने उनको घर ही बिठाना था ख़वातीन की हद तक, और अगर मर्दों की हद तक हमने उनसे जो पढ़ाया था उससे सिग्निफिकेंटली लोअर ही जॉब करानी है, तो फिर अब what is the point of moving forward? And I would think that we as a society need to think about this. And if I would strongly advocate limiting the undergraduate population and moving people to the skills and making the skills degree also as respectable as any university degree. And that would really, the respectability is really the key here. So we've had many corporate guests as well, right? जो leaders आते हैं और वो बोलते हैं कि जॉब्स ज़्यादा हैं बट स्किल्ड पॉपुलेशन ही अवेलेबल नहीं है. तो इतने बच्चे जो ग्रेजुएट हो रहे हैं उसमें उनको अगर एक बंदा नहीं मिल रहा हायर करने के लिए, डू यू थिंक इट्स एजुकेशन सिस्टम का मसला है कि हमने उस तरह से अपने आप को अपस्किल नहीं किया? वी आर नॉट रियली ऑन पॉइंट विद व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन द मार्केट. बस जो पुरानी एजुकेशन वो करिकुलम में वही हम खींचे जा रहे हैं. तो वहाँ पे शिफ्ट लाने की ज़रूरत है. और मे बी द किड्स नीड टू नाउ टेक एडवांटेज ऑफ द फैक्ट कि ऑनलाइन लर्निंग इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन, अपस्किलिंग योर सेल्फ ऑन योर ओन इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन, या फिर देयर शुड बी अ गुड बैलेंस बिटवीन दीज टू. आई थिंक ये वही बात के जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको ह्यूमन रिसोर्स नहीं मिल रहा और जो स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही. ये दिस इज़ the biggest issue for the youth in the country. Lack of opportunity to work. So इसमें 2 pathways हैं. One pathway is that we basically give an opportunity to reskill those individuals that we've actually produced. So 2000 से लेके 2020 तक हमने 1 करोड़ ऐसे बच्ची जो हैं उनको यूनिवर्सिटी स्ट्रीम से निकाल दिया ऑलरेडी. अब उनसे मज़ीद इन्वेस्टमेंट कराना कि वो दोबारा यूनिवर्सिटी जाएं ये तो मुमकिन नहीं है. मगर हमने डेफिनेटली उनको वो स्किल्स नहीं दी कि जिनसे उनको किसी भी तरह का कोई माकूल रोज़गार मिल सकता है. उनमें से बहुत से ऐसे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स करके अब कोई इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, तो क्लियरली उसकी वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री तो वेस्ट हो गई है. आई थिंक
we need to reskill those individuals with small programs. 6 महीने का रीस्किलिंग प्रोग्राम से उनको किसी ऐसे रास्ते की तरफ ले जाया जाए, कोई कंप्यूटर स्किल्स की तरफ, आईटी स्किल्स की तरफ, या ऐसी स्किल्स जो कि इस वक्त दुनिया में रिक्वायर्ड हैं. वी आर, आई मीन, इन सम वेज वी आर द यूथ डिविडेंड दैट वी हैव, उसकी जो नीड है और इम्पोर्टेंस है वो डबल ट्रिपल हो गई है इन अ सिचुएशन वेयर फर्टिलिटी रेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव कोलैप्स्ड. So almost 50% of the developing world is developed world is in a situation where they are in a dire need to import labor. तो आपको हाउस हेल्प भी चाहिए, आपको एल्डरली केयर के लोग भी चाहिए, आपको ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए ड्राइवर्स चाहिए, तो हार्ड स्किल्स भी चाहिए, एंड देन यू नीड द सॉफ्ट स्किल्स एज वेल. सो इन सम वेज वी नीड टू कन्वर्ट दिस मैसिव लॉस इनटू an opportunity by reskilling those individuals. और लोग ख्वाहिशमंद हैं. आज भी पाकिस्तान से 7 लाख लोग एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में मुल्क से बाहर जा रहे हैं. ज़्यादातर ऐसे ही लोग हैं जिनके पास कोई ना कोई डिग्री या कोई ना कोई स्किल का प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जिन मुल्कों में वहाँ जा रहे हैं वहाँ पर आपको किसी सर्टिफिकेशन के बगैर आना मुमकिन नहीं है. तो लाखों में लोग सर्टिफाई अपने आप को करके एक एम्प्लॉयमेंट का रास्ता ले रहे हैं. But we need to think more on those lines, and it would not be just an economic reality, but it is also going to resolve the problems of the youth in the country who are in a very despaired situation, partly because उनको एक ख्वाब दिखाया गया था कि डिग्री से दरवाजे खुल जाएंगे, और जब उन्होंने डिग्री ले ली तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ सीवीज़ ड्रॉप करने के लिए भी दरवाजे बंद मिले, उन्हें अच्छी एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए दरवाजे बंद मिले, उन्हें पॉलिटिक्स के दरवाजे बंद मिले, उन्हें हर तरह के दरवाजे बंद मिले. और इस वजह से जो यूथ है वो जब दरवाजे बंद हों तो आपकी उम्मीद टूट जाती है. तो रीस्किलिंग इज़ वन ऑफ दोज वेज दैट वी कैन रीइग्नाइट दैट optimism in the youth in the country. So then, in light of this, what is your opinion on brain drain? Do you feel like ये पाकिस्तान के साथ गलत हो रहा है, और मे बी जब यहाँ है ही नहीं अपॉर्चुनिटीज़, तो इट्स बेटर फॉर दीज किड्स टू गो आउट एंड फाइंड बेटर एम्प्लॉयमेंट, राइट? या फिर अक्सर लोगों को लगता है जो हमारी क्रीम है वो तो सारी बाहर चली जाती है और पीछे बस इररेलेवेंट से लोग वापस रह गए, तो अब वो तो मुल्क को कहीं आगे लेके जा नहीं सकते. डू यू थिंक दैट्स ट्रू? इज दैट व्हाट इज हैपनिंग? I find an issue with this word brain drain. I think पहली बात उसमें ये है कि it implies that people who are left behind are not brainy. क्योंकि ब्रेन तो ड्रेन हो गया, तो फिर जो पीछे रह गए हैं वो कौन है? दूसरी चीज़ ये कि इट इज़ नॉट बैक्ड बाय नंबर. सो even if you think that educated Pakistanis are the brain and people who don't have education are not brain, which I don't agree with, जो पाकिस्तान से लोग छोड़ के जा रहे हैं हर साल 7 लाख जाते हैं. और तकरीबन यही नंबर 1980 से चला आ रहा है, जब से पाकिस्तान में गल्फ माइग्रेशन शुरू हुई. 7 लाख में से तकरीबन 90% सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, इन 3 मुल्कों और कुछ और गल्फ कंट्रीज़ में जाते हैं, और ये वो लोग हैं कि जो बिल्कुल बेसिक स्किल सेट रखते हैं. Not everybody is going to a tech company to become a product manager, right? So ये जो 7 लाख जा रहे हैं, सबसे बड़ी जो ऑक्यूपेशन है तकरीबन 5 लाख अफराद वो जाते हैं बेसिक लेबर की. अच्छा, ये वो लोग हैं कि जो जिनको पाकिस्तान में भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि कुछ हद तक इनको ये पाकिस्तान में भी वो आपको किसी तरह की तालीम चाहिए उस तरह की जॉब करने के लिए. तो ये बिल्कुल बेसिक मैनुअल लेबर करने जा रहे हैं. तो इन सम वेज दैट इज़ नॉट लॉस फ्रॉम सोसाइटीज़ परस्पेक्टिव, एंड the rest of the jobs as well are very basic. जो लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं, जिनको हम एक्चुअली ये कहेंगे कि वहाँ से हमें कोई स्किल्स का लॉस हो रहा है, यानी मुल्क जो है वो स्किल्स का लॉस कर रही है, वो 2-3 ऑक्यूपेशंस हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए. मसलन डॉक्टर्स की. सो पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज जिसमें हाईएस्ट माइग्रेशन हुई है from the doctors community. So almost 10% of the doctors that we produced over the past 2 decades have actually left the country, and this is the second highest. India is the highest, वहाँ पे 12% डॉक्टर्स जो हैं वो जा चुके हैं. हर साल हम तकरीबन 15,000 डॉक्टर प्रोड्यूस करते हैं, और तकरीबन 1,500 डॉक्टर जो हैं वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं. मोस्ट ऑफ दोज 15,000 पे हुकूमत जो है वो मिलियंस ऑफ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करती है.
सो कुछ इलाकों में तो ये स्किल लॉस का मसला चल रहा है, मगर ज़्यादातर लोग जो जा रहे हैं. एंड लास्टली आई वुड ऑल्सो एग्री विद योर फैक्ट कि आपने जो कहा कि अगर लोग रोज़गार हासिल करने के लिए मुल्क से बाहर जाते हैं, तो इसमें हमें वाई शुड वी हैव एन इशू विद दिस. ज़्यादातर वही लोग हैं कि जिन्होंने अपनी जेब से पैसा खर्च करके एजुकेशन हासिल की है, उन्होंने अपनी जेब से खर्च करके एक एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो को पैसे दिए हैं, सर्टिफिकेशन हासिल किए है, वो अपना ही टिकट लेके मुल्क से बाहर जा रहे हैं. तो हम वाई डू वी कन्वर्ट दिस इनटू अ नेशनलिज्म इशू व्हेन पीपल एक्चुअली लीव द कंट्री, एंड मोस्ट ऑफ दोज पीपल आर एक्चुअली एबल टू ब्रिंग बैक डॉलर्स टू द कंट्री. रेमिटेंस तो हमें बहुत पसंद होता है, पसंद है, मगर जब बाहर जाते हैं तो हम. अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी कि ये पेश किया जाता है एज ए सोर्स कि पाकिस्तान फेल हो गया. हालांकि अगर आप माइग्रेशन के नंबर्स देखें तो लार्जेस्ट माइग्रेशन तो चाइना से हो रही है और इंडिया से हो रही है. जहाँ पर नैरेटिव ये है कि वो तो राइजिंग इंडिया है और चाइना तो दुनिया की सुपर पावर बन रही है. तो अमेरिका में और यूके में और आप यूरोपियन मुल्कों में देखें तो पाकिस्तानीज एज प्रोपोर्शन ऑफ आर पॉपुलेशन leaving the country and people leaving from these countries is much smaller. पाकिस्तान से तो लोग बाहर नहीं जा रहे उस तादाद में, और जो जा रहे हैं हमें उनके बारे में खुश होना चाहिए, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए. You're right, it's a branding issue. You know, whenever I see a lot of Chinese people पाकिस्तान में, तो कोई ये नहीं बोलता कि वहाँ नौकरी नहीं थी तो यहाँ आ गए. They're like, oh, they're expanding everywhere, they want to be everywhere, they'll be part of everything. हम लोग जाते हैं तो it's a loss, it's a failure. So it is a narrative problem in some ways, and I mean I think conversations like these really contribute to us looking at the same reality, maybe looking at the same reality but from a more positive lens, so that we can do something about it. I mean जो चीज़ ख़राब है उसको ठीक कर लें, और जो चीज़ अच्छी है उसको ख़राब कहकर एक माहौल ख़राब करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है. अच्छा, टॉकिंग अबाउट नैरेटिव, वी कांट इग्नोर सोशल मीडिया, राइट? बिकॉज सारा नैरेटिव बनता है इधर से ही होता है. डू यू थिंक because now people have access to information, and because unfortunately that information most of the times is not correct, which is why ये मसला ज़्यादा हो गया है, या there are some people who benefit from this idea तो वो बस इस चीज़ को promote करते हैं? I think I mean social media is a problem across the world, and for a developing society the problem is even acute, and for me the largest problem is currently that पहले आप अगर पाकिस्तान में रहते थे या अगर आप गांव में रहते थे तो everything around you was in synchrony. You did not have visuals and emotional images of another world. And now you're constantly bombarded with images which are together with emotions. So sound भी है उसकी और उसकी visuals भी exist करते हैं. People expressing it in ways that was not possible before. So you're constantly in a situation where you have an option to think about what you don't have, and this feeling of what the younger generation call as FOMO, the fear of missing out. Yes. That fear of missing out is one of the largest sort of, I mean, the behavioral or psychological factors that is causing sort of depression in the country. So in some ways, what do we do with it? I think the usual Pakistani response is to ban it. So we banned Twitter. In the past, we banned YouTube. सिमिलर थिंकिंग के ये वो उस तरह के विजुअल्स दिखा रहे हैं. पहले कम्युनिस्ट वर्ल्ड में उन्होंने इस तरह की चीज़ें की, उन्होंने एक वॉल बना दी, उन्होंने कहा कि इस वॉल के इस तरफ और उस तरफ ना जा सकें. तो क्या वो वॉल इवेंचुअली द बर्लिन वॉल हैड टू फॉल, द आयरन कर्टन हैड टू बी disbanded. In the Pakistani context, we eventually had to unban Twitter and unban YouTube. So what we do really need is actually to create a self-confidence in what we have. So we don't have an option to stop the visuals of the West now. Yeah. Or we don't have an option of visuals of Islamabad from just this angle, but not the Islamabad from the angle that
I mean, that has sewage overflowing or has just so much noise of traffic. So someone who is in the village is actually better off in some ways because उसके पास साफ पानी भी है, साफ हवा भी है. Yeah. तो मगर हम उसको वो वाला विजुअल तो नहीं दिखाते, और वेस्ट का भी वो विजुअल हम नहीं देखते कि जहाँ पर लोग फूड स्टैम्प्स की लाइन में लगे हुए हैं, या जो लोग जो हैं वो अस्पतालों में लाए जा रहे हैं सुसाइड के थ्रू, या स्कूलों में 1/4 स्कूल अमेरिका में पिछले 1 साल में खाली करा लिए गए क्योंकि किसी बच्चे के हाथ में गन थी और वो स्कूल ले आया. सो हम वो वाले विजुअल्स तो नहीं दिखा रहे, तो हम सिर्फ एक कैरिकेचर्ड विजुअल्स दिखा रहे हैं. तो अब वो बंद तो हो नहीं सकते, मगर हम अपनी सूरत हाल के बारे में एक फेयर पिक्चर को भी एक रिलेटिव नैरेटिव में इंक्लूड कर सकते हैं, और फिर पीपल हैव एन ऑप्शन, people have a fair option that they can compare where they are and what the visuals look like. But otherwise, I think the way social media is currently structured, it is bound to create a lot of despondency and despair. Or I was recently in a number of Eastern European countries. So मैं Georgia गया, मैं Slovenia गया, मैं Bulgaria गया, and you would be shocked to know that उनके issues भी exactly similar हैं कि the youth don't want to live in those countries. So वो हमसे हज़ारों डॉलर बेहतर इनकम पे हैं, मगर the youth in Bulgaria wants to be in Germany, the youth in Slovenia wants to be in the United States. So in some ways it's not really an income issue. So हम अगर अपने इनकम इम्प्रूव भी कर लें तो वो जो विजुअल्स हैं वो अमेरिका को और वेस्ट को इतने ग्लैमरस तरीके से प्रोवाइड करते हैं कि people would always feel that they are missing out and they ought to be just taking that direction. We need to create a parallel narrative of confidence in our own culture and our own economy. Do you think it's a poor country issue जहाँ पे ज़्यादा resources नहीं है तो we are very easily convinced that life outside is going to be so much better? I think it is an income issue, but it's also a cultural issue. I think over the years we've become much insecure about who we are, and therefore it's just being aggravated because of that cultural issue as well. Very nice. अच्छा, अब we'll move on to the next gaming segment. It's called Hot Take Challenge. The idea is कि हम आपको hot take देंगे and you have to give your honest opinion, whether you agree, disagree, and if you want to say something about it also. Are you ready? Yes. Pakistanis trust social media influencers more than the government data. Definitely yes. Why do you think that is though? I think the government has done a exceptionally poor job of branding themselves, and also by their behavior. I mean, if you think about government, you think about like protocols and so branding and reality is different, and the social media people look like, I mean, normal individuals who are trying to say something and people believe them. In Pakistan, virality matters more than credibility. I think in the fast social media world right now, this is definitely a phenomenon. No one is really looking for credibility. I mean, very few people are. And I think when they take a deep breath and are able to think about it in a more deeper way, they would value credibility. But then the fast social media world doesn't even allow you to think for a blink. It just wants you to believe in it. And credibility is certainly not on the horizon. So brain drain isn't a loss, it's actually a global export of talent. I wholeheartedly believe in this. And not just because of the economic argument. It's also a freedom argument. I mean, people who are walking out of Pakistan, we don't necessarily have to castigate them or to say there are more than enough people जो रह गए हैं, वो भी बहुत है हमारे पास, और हमें उनके इश्यूज के ऊपर स्ट्रेस करने बजाय इसके कि जो लोग जा रहे हैं उन पे मातम करने का कोई फायदा नहीं है. And they are happy. I mean, if they are happy, why should we be unhappy about them? Yeah. Our opinions are shaped less by reality and more by algorithms. I think for the people on the social media, that is true. And I think one fact that we see is that people who are on social media are more on a 9-point scale of depression. They're more depressed, and it's all because they're believing in whatever they're seeing on social media more. So data says Pakistanis are resilient, but that basically just means we've stopped expecting things to get better. Talked about it also. Do you think that? I tend to disagree. I think we're resilient because we have a very different set of expectations from
what the modern world has to offer. There is a Pakistan that is modern, which for which this is all true. But the vast majority of Pakistanis are happy in their situation far more than what we think they are. They are really unhappy. It's us projecting our unhappiness on them. In Pakistan, therapy still means talking to your mother and hoping she doesn't tell your aunt. I think that's very true. The mother is the Yeah, sole console yes. provider now. अच्छा, the only financial plan people here have कि अगले महीने से सब ठीक हो जाएगा. I think that's very true. So every Pakistani, Inshallah. yes, I As we hope, like to call it yes. all the time. Every Pakistani is patriotic until it's time to pay taxes. I think there is a major crisis in our recent most sort of study that we do. 9 out of 10 Pakistanis actually get in services much more than what they are actually paying in taxes. And this includes not just the income tax, it also includes the GSTs and everything that we pay. Yeah. So essentially, in a month, if you add up all of those GSTs and the income that you paid, apart from like the salaried class, you have already received in terms of education that you went to, or the health that you ever took off, the roads that you use in a particular day, the law and order that the police eventually provided, even though it is very it is crumbling. But imagine a world where there is no police, and there are countries where there is no. So if you imagine a Haiti or a Somalia or an Ethiopia, the idea of the privileges or the freedom that we have. So in some ways, one of the biggest issues is that Pakistanis are consuming a lot of services that the government is offering without actually paying for it. And who is paying for it is the future generation. So in some ways, they are paying for our privileges. But why is it that, when somebody moves to Germany, for example, 40-45% of the salary goes in taxes, and वो आपके साथ argue करेंगे कि it is justified, it makes sense, और यहाँ पे tax जब जाता है, सब दे रहे हैं, अकेले आप नहीं दे रहे, लेकिन फिर आप पूरा दिन इसी बारे में बात करते रहेंगे, unfair. I think उसमें, to be fair to them, I think one is the quality of service that you get. So education तो government school की लेते हैं हम, या अगर आप tertiary university गए हैं, 7 out of 10 undergraduates, postgraduates that Pakistan produce, वो हुकूमत की यूनिवर्सिटी से ही पढ़ते हैं. 10 में से 7, इंक्लूडिंग लाइक द फेमस वंस एज वेल. नास्ट है, या कॉमसेट्स है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है. आई मीन दीज आर good universities. People earn millions afterwards, but ये गवर्नमेंट के पैसों पे हैं. So in some ways there is some argument कि quality अच्छी नहीं है. And then I think as a nation, it's a narrative problem. We have fought the government far too much than we ought to have. I think हमने state के साथ एक बड़ा colonial सा relationship रखा हुआ है. Not that the state has done well. The state has also not performed well. उनका जो protocol culture है वो it pisses us off, because I mean it's a waste of resources. या corruption हुकूमत में exist करती है. तो I think there is a narrative problem, but then there is also a service delivery problem on the government's end as well. Both need to be fixed. The government keeps on just talking about कि हम जो है आपको करप्शन फ्री पाकिस्तान बना देंगे और ऐसा कर देंगे, एंड दे फील कि इससे मसला सॉल्व हो जाएगा. द नैरेटिव नीड्स टू बी इम्प्रूव दैट पीपल ऑट टू बिलीव दैट इट इज़ देयर गवर्नमेंट. No one believes that this is their government. That's हमेशा यही हमेशा ही ऐसे है. They're always waiting ये खत्म हो तो तो अगली दूसरे आएगी के तो लिए कुछ हम होगा. अपना होप उसके ऊपर लगा सकें. सो आई थिंक इट्स ऑल्सो अ गवर्नेंस स्ट्रक्चर प्रॉब्लम. जर्मनी में जो बेसिक सर्विस है वो आपके काउंटी लेवल पे डिलीवर हो रही है. जो वो मेयर है वो आप उसके घर जाके आप उसके साथ चाय पी सकते हैं. अगर मैं इस्लामाबाद शहर के बारे में सोचूं कि मैं रंधावा साहब के साथ चाय पीऊं, तो ये तो इसमें तो मुझे महीनों लग जाएंगे. रोड पे गुजरने के लिए रूट लगा के इतना हमें वो हाँ, बॉदर करते हैं. वही बॉदर करते हैं. They can't share traffic with us, तो फिर what can they share? Yes. They can't share tea with us, obviously. So I think it's a narrative problem, but also a structural problem, and we need to fix these rather than actually fixing the system. I mean, there is a need to fix the narrative, and then there is a need to fix the system.
जो सिस्टम को फिक्स करने के लिए बहुत एफर्ट होती है, बातें भी बहुत होती हैं, मगर जो नैरेटिव है ये सॉफ्ट साइड है कि आपको उस तरह की प्रोटोकॉल से अगर लोग नाराज़ होते हैं और गुस्सा करते हैं आप पे, तो आप वो प्रोटोकॉल रिड्यूस कर लें, या आप प्रोटोकॉल लेना है तो कहीं और ले लें, इन्हीं रोडों पे लेने की आपको क्या ज़रूरत है. But I mean, you also sometimes feel that this is what the rulers really want. This is how they feel कि वो इम्पोर्टेंट है कि लोग लाइनों में खड़े हैं और वो गुजर. वैसे भी एज अ मैंने जितना भी देखे, आम आदमी को भी जहाँ मौका मिलता है दे फर्स्ट वांट टू एक्सरसाइज द सेम काइंड ऑफ अथॉरिटी. आई मीन हम उनके बारे में जितनी भी बातें करें, बट मुझे मौका मिले ना लाइन स्किप करने का, आई बी द फर्स्ट वन टू मूव अहेड. एयरपोर्ट पे आते हैं तो हम महसूस करते हैं वही चीज़ के वो नाम ले रहे होते हैं हमारे ही दोस्त अहबाब के, और वो लाइनें तोड़ के जा रहे होते हैं. यस, दैट्स ट्रू. अच्छा, मूविंग ऑन टू द फाइनल सेगमेंट व्हिच इज कॉल्ड द फ्यूचर. इसमें based on all the discussion that we've had, I would like you to highlight के अब future generation जो है, people who cannot leave this country for whatever reason, वो क्या करें to be better prepared for the future that is coming for them? I think the first is to be more thoughtful of what is around you. I think किसी भी मुल्क से किसी के को परमानेंटली छोड़ के जाना जो है वो एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है. जो लोग मुल्क के छोड़ कर जाते भी हैं, उनके ऊपर भी, इमिग्रेंट्स के ऊपर जो रिसर्च हुई है, देयर इज़ ऑलवेज दिस फीलिंग दैट दे वुड रिटर्न. इट वाज कॉल्ड द मिथ ऑफ रिटर्न, कि इमिग्रेंट्स किसी भी दुनिया के जहाँ भी गए, वहाँ उनसे पूछा गया कि भाई यहाँ रहने के लिए आए हो, तो वो कहते हैं कि हाँ कुछ अरसे के लिए तो वापस चला जाऊँगा. आज भी अगर आप जो ओल्डर जनरेशन ऑफ पाकिस्तानीज़ हैं जो अमेरिका में बहुत अमीर हैं, बहुत पैसा कमा लिया उन्होंने, उनसे अगर आप पूछें तो वो ये कहते हैं कि मैं तो चाहता हूँ कि अगर दफन हूँ तो पाकिस्तान में ही हूँ, कि वहाँ पे कोई मेरे जनाजे पे आएगा, या ये कि बच्चे जो हैं वो अब नज़र नहीं आते तो आई वांट टू बी अराउंड माय ग्रैंड पेरेंट्स. So in some ways we need to be more thoughtful of what we have, because not only would this create more sense of gratitude, और आज का जो रियलिटी है वो अगर मुश्किल नहीं, ज़माना मुश्किल है, तो एटलीस्ट उस सफ़र को आसान करने के लिए इंसान जो है वो मोर ग्रैटिट्यूड और मोर जो बेनिफिट्स हैं उनको तो अपने जहन में रख ले. एजुकेशन अनफॉर्चुनेटली आपको इन तमाम चीज़ों से दूर लेके जाएगी. वो आपको कहेगी कि एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी को देखें और ये जो सब्जेक्टिव रियलिटी ऑफ पीपल अराउंड है इसको ना देखें. So I would think this is one of those things that we need. The other is, I think as a nation we need to fix some of the perpetual issues. I think मेहनत ना करना जो है, या जुगाड़ जो है, शॉर्टकट निकाल लेना जो है, ये हमारे हमेशा से चला आ रहा है, मगर ये कि अब हमें इसको फिक्स करना है. अगर आप वाकई कोई इकोनॉमिक एंड्स अचीव करना चाहते हैं. मैं आते हुए देख रहा था तो सुप्रीम कोर्ट की किचन के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, और वो पहले था कि वो कोई सिलेंडर फट गया है, फिर बाद में पता चला कि वो कोई एसी फट गया है. सो आप उसकी वीडियो देखें तो लोग एक आम सा बड़ा कैजुअल सा एटीट्यूड है, कोई वर्कर सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ा हुआ है, लोग आके गपशप मार रहे हैं, लाइटें वाइटें खुली हैं. सो एज important a building as a Supreme Court on the constitutional avenue, the very basic way of working as a workman was missing. I would think seriousness नहीं है. तो आप जो भी काम करें, अगर आप सोशल मीडिया स्टार बनना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करें. अगर आप जो है वो इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिशियन की वर्दी पहनकर आप उसको रिस्पेक्ट दें और अपने लिए भी रिस्पेक्ट कायम करें. मुझे ये महसूस होता है कि एज अ नेशन वी नीड टू फिक्स फ्यू ऑफ दोज थिंग्स. आई मीन वी आर हैप्पी पीपल, ये अच्छी बात है. फैमिली के अराउंड रहना चाहते हैं, ये भी अच्छी बात है. मगर ये कि जो कुछ बेसिक SOPs हैं कि शॉर्टकट ना लिया जाए, मेहनत की जाए, वक्त की पाबंदी के बारे में सोचा जाए. अगर आप पाकिस्तान में शादी के इवेंट्स देखें तो I sometimes look at them from a sociological angle, and things have become crazy. Like कराची में शादी 12-1 बजे रात को शुरू होती है. ऐसे घरों में जहाँ पर बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं या लोग जो है सुबह ऑक्यूपेशन पे जाते हैं. So in some ways we need to fix some of those social issues, and otherwise we have a bright future. I think I would think that there are only few nations in the world who are currently expanding in population,
who are also sit on a large reservoir of natural resources, including just the water. Like uh, the the glaciers that Pakistan has is the second largest glacier in the world. Up and the first one is actually the North Pole. So the reservoir of water that we have currently, on our glaciers is the largest in the world. So यानी आपके पास यूथ भी है, आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, आपके पास पानी भी है. So there's nothing to despair if we are able to fix some of those sort of very perpetual problems that we have. Great advice, Bilal. अच्छा, now moving towards the conclusion, हमारे traditions हैं कि एक तो because our audience watches this episode, हम उनको कुछ देना चाहते हैं इसमें. You have to announce a giveaway that somebody can win through a social media competition. So based on whatever you decide to give away, हम एक competition design करेंगे and then people can participate in it and then we'll choose the winner. So what is it that you would like to give away? I think I'd be very happy to offer some sort of cash benefit if someone is able to do something really well out of that opportunity. But how would you like to identify that winner then? Because कैश के मामले में तो बहुत अब एंट्री महंगी है, लेकिन हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि राइट काइंड ऑफ टैलेंट को हम ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं? डू यू वांट देम टू डू maybe carry out some interesting research और कुछ और इस तरह की? I would think कि अगर हम कोई ऐसी चीज़ के people who can make sense of the data from the available data points that I can point out, I think that is something that is really missing in Pakistani sort of ecosystem. So data भी available है, data easy form में available भी कर दिया गया है, मगर यंगर जनरेशन और ओल्डर जनरेशन अलाइक हम उस डेटा को से सेंस नहीं बना सकते. सो अ कॉम्पिटिशन दैट identifies an issue and then asks people to use resources to write something that is data rich, and then maybe there is a referee group of referees who can decide on that. Then how about we do it this way कि आप शुरू में एक वेबसाइट का नाम मेंशन कर रहे थे? बिल्कुल, Gallup Pakistan Digital Analytics. ठीक है, so people can go over there, choose a data set that they like, and then they can either write about it or they can make a video about it. Just that can help in making sure कि awareness उसके ऊपर that would be amazing. And then we can choose the best content. That sounds like a great ठीक plan. है. अच्छा, एक और चीज़ जो है हमारी कि हमारे जो गेस्ट होते हैं, they have to leave a question for the next guest, but before they do that उनको पिछले गेस्ट का क्वेश्चन भी आंसर करना होता है. ठीक है, तो इंटरेस्टिंगली लास्ट जो गेस्ट थे वो अली फरीद थे के ट्रेड के चेयरमैन. तो उन्होंने जो है क्वेश्चन जो छोड़ा है वो बिल्कुल अपनी फील्ड से रिलेटेड. उन्होंने ये बोला कि आपको क्या लगता है कि अगले 3 महीनों में स्टॉक एक्सचेंज या बिटकॉइन व्हाट इज गोइंग टू परफॉर्म बेटर एंड व्हाई? I would think the stock exchange is going to perform better. I feel that the Pakistani economy के fundamentals आजकल अच्छे हैं, और the stock market is probably underselling, and it's been so for a month or so that it's been going down. Bitcoin, I'm a bit skeptical about Bitcoin in general. Yeah. ठीक है. And what is the question you would like to leave for the other guest? हमें नहीं पता कौन होगा, so maybe something. I'd like to know more about what they think of the Pakistan's future, and if they think the Pakistan's future is bright or it is despaired. Yeah. Very nice. Thank you so much for your time, Bilal. It was a really, really fun conversation. And I feel like, personally for me, leaving this conversation, I feel very hopeful. It's not as bad as we think, right? So maybe a lot of people who watch it also are going to feel that way. So thank you for being the ambassador of, Pakistan's bright future. And hope you had fun, because we did. But I love the conversation. Thank you for inviting, and thank you for also acknowledging the hopeful part. I really wish many of our viewers have also felt the same. Yeah. So this is it for today, guys. Thank you so much for tuning in, and we will see you in the next episode. Bye-bye.